Hello students, good morning all of you. Today in this video I will teach you chapter 7 of snapshot, which is birth. Alright, it is written by A.J. Cronin. Fine. In my previous video, I completed up to page number 66. Fine. The point was, her meditation had pursued a different course. Means, the old lady, Mrs. Morgan's mother, was thinking something different. She was visualizing the happiness of the arrival of the baby in the family. Fine. So now let's begin from page number 67. Susan said not to give her chloroform if it would harm the baby. Susan is Mr. Morgan's wife. Alright. Susan Morgan is Mr. Morgan's wife. So on behalf of Susan Morgan, the old lady was saying to the doctor not to give chloroform. Chloroform means it is a medicine. Alright. It is a medicine that is used to make someone unconscious. ठीक है, जैसे एनेस्थेसिया नहीं होती, like anesthesia, chloroform is also used. So Susan said not to give her chloroform if it would harm the baby. यानी अगर बेबी को कोई क्लोरोफॉर्म से नुकसान होता है तो वो ये कह रही है कि उसे क्लोरोफॉर्म मत देना. सी कितनी ये कह सकते हैं कि बेबी के लिए सेफ्टी है मदर के हार्ट में. यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म दे दी जाए सुजन को तो सुजन को डिलीवरी पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेबर पेन बिल्कुल होगा ही नहीं. बट शी इज सेइंग कि मैं पेन सह लूंगी बट देयर शुड बी नो हार्म टू द बेबी. अगर क्लोरोफॉर्म से कोई भी हार्म होता है बेबी के लिए तो उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दी जाए. ऑलराइट, दिस इज द मीनिंग. शी इज ऑफुल अपॉन दिस चाइल्ड. डॉक्टर बैच शी इज ऑफुल अपॉन दिस चाइल्ड. हर ओल्ड आईज फॉर्म्ड एट अ सडन थॉट. She added in a low tone, we all are, I fancy, we all are, means, देखिए, she is awful set upon this child means she did not want to lose this child at any cost. Susan Morgan does not want to lose this child at any cost. यानी किसी भी कीमत पर वो जो है इस बच्चे को खोना नहीं चाहती है. और old eyes warmed at a sudden glance, यानी अचानक से sudden thought के साथ उसकी आंखें वार्म होने लगी. She added in a low tone, यानी उसने धीमी आवाज में कहा, we all are, I fancy, we all want this child. ठीक है, we all don't want to lose this child at any cost, I fancy, I imagine, said the old lady to the doctor. डॉक्टर ने कहा कि हम हर कीमत पर इस बच्चे को बचाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर हम इस बच्चे को खोना नहीं चाहते हैं. तो आप देख लीजिए डॉक्टर बैच, ऐसी कोई भी चीज सुजन को मत देना जिससे कि इस बच्चे को कोई हार्म हो. दिस इज द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ. He collected himself with an effort. Doctor collected himself with an effort. It won't do any harm. Means chloroform will not do any harm. The anesthetic, यानी anesthetic से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Anesthetic is also a medicine that works like chloroform. He said kindly, they'll be all right. They'll be all right. Here they means the child and mother. Both will be all right. Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew glances at the clock. यानी यहाँ पर नर्स जो है ऊपर से आवाज लगा रही थी. At that time Andrew looked towards the clock which now showed 3:30. क्या टाइम हो रहा? 3:30 means 3:30 हो गए. He rose and went up to the bedroom. Dr. Andrew got up and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. Dr. Andrew understood that he should start his work now. अब उसे उसका काम शुरू कर देना चाहिए. Means डिलीवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए. An hour elapsed, an hour passed. Elapsed means passed.
ELAPSED, लेफ्ट मीन्स पास्ट, ठीक है। 1 घंटा बीत गया यानी 4:30 हो गए। It was a long, hard struggle. The struggle that Andrew was doing was a long and hard struggle. Then as the first streaks of dawn, streak होता है rays of light. dawn होता है DAWN, टाइम बिफोर मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग है, या ये भी लिख लो टाइम बिफोर मॉर्निंग, ठीक है। इसको dawn बोलते हैं। streak and rays of light. Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, यानी जैसे ही broken edges of the blind यानी जो आपका शटर था ना, शटर कह लो या फिर कर्टेन कह लो, उससे होकर के जैसे ही पहली जो किरण होती हैं, उषा की किरण है, यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं कह सकते, उषा काल की किरण कहेंगे तो ठीक लगेगा। स्ट्रेट का मतलब मूव्ड अवे। देखिए then as the first streaks of dawn strayed past and moved away the broken edges of the blind, the child was born lifeless. बच्चा कैसा पैदा हुआ? lifeless पैदा हुआ। देखिए कैसा नहीं, the child for whom the family had been waiting for the last 20 years and now finally it was the time family thought that there would be a child in the family, और बच्चा हुआ तो कैसा हुआ? लाइफलेस हुआ। कैसा हुआ? लाइफलेस हुआ। अब आप कंडीशन समझ सकते हैं, व्हाट माइट बी द कंडीशन ऑफ द फैमिली एंड व्हाट माइट बी द कंडीशन ऑफ डॉक्टर। ये डॉक्टर की क्या कंडीशन होगी? फॉर द पर्पज ऑफ द सेफ्टी मॉर्गन्स फैमिली कॉल्ड डॉक्टर एंड्रू बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू लूज द चाइल्ड एट एनी कॉस्ट, बट व्हाट हैपेंड, यू नो फाइनली व्हाट हैपेंड। देखिए as he gazed at the still form of a shiver of horror passed over Andrew. As Dr. Andrew looked towards the child, still form of a child, gazed means looked at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. A shiver of horror passed over Andrew, यानी एंड्रू के ऊपर एक ये कह सकते हैं कि भयानक सी चीजें उसके ऊपर होने लगी, ठीक है। शिवर, शिवर यानी कपकपी आ जाना, ठीक है। हॉरर यानी डर के मारे जो कोई कांप जाता, उस तरह की हालात डॉक्टर एंड्रू की हो गई। अगेन सी द सेंटेंस, एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, एज डॉक्टर एंड्रू लुक्ड एट द स्टिल बोर्न चाइल्ड, अ शिवर ऑफ हॉरर, अ शिवर ऑफ फियर, हॉरर मीन्स फियर पास्ड ओवर एंड्रू, उसके ऊपर क्या छा गई? भय की एक कंपकपी सी उसके ऊपर आने लगी, ठीक है। यानी डर के मारे एकदम से पूरा सिहर गया, यानी डॉक्टर के ऊपर डरावनी सिहरन छा गई पूरी तरह से। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, कुल मिलाकर के उसने प्रॉमिस किया था। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस, उसके खुद की मेहनत करने की वजह से उसका चेहरा क्या हो गया था? गर्म हो गया था। चिल सडनली, और वो अचानक से क्या हो गया? चिल हो गया। यानी ही स्टार्टेड हिज वर्क एट 3:30, कितने बजे? 3:30 पर, ठीक है। 1 घंटे तक चलता रहा, 4:30 तक, ठीक है। एंड जैसे ही फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ रेज आई, फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन आई, द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस। कैसा पैदा हुआ? लाइफलेस पैदा हुआ। एंड जैसे ही डॉक्टर एंड्रू ने उसकी ओर देखा, स्टिल बोर्न चाइल्ड की ओर देखा, अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर हिम, उसके ऊपर एक शिवर ऑफ हॉरर पास हो गई, यानी पूरा डर से कांप गया था। आफ्टर ऑल ही हैड प्रॉमिस्ड, हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शन, यानी इतने 1.5 घंटे की मेहनत से जो उसका चेहरा गर्म हो गया था, वो अचानक से उस बच्चे को देख करके कैसा हो गया? चिल हो गया, यानी ठंडा पड़ गया। ही हेजिटेटेड,
इसको अंडरलाइन कर लेना। ही हेजिटेटेड टोर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिसोसिएट द चाइल्ड, दिस इज द डिलेमा इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, यानी वो हिचकिचा रहा था। टोर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिसोसिएट द चाइल्ड, यानी अपनी जो अटेम्प्ट करने की, बच्चे को रिसोसिएट करने का जो अटेम्प्ट था उसकी डिजायर के बीच में, द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर, और माँ को बचाने की उसकी ऑब्लिगेशंस के दोनों के बीच में। यानी ऑन द वन हैंड ही हैड अ डिजायर टू रिसोसिएट द चाइल्ड, रिसोसिएट का मतलब होता है टू रिवाइव, क्या कर देना, रिवाइव कर देना, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको इसका मीनिंग, फिर देख लीजिए, RESUCIAT, रिसोसिएट मीन्स रिवाइव करना, ठीक है। यानी ही हेजिटेटेड टोर्न बिटवीन हिज डिजायर टू रिसोसिएट द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे को रिसोसिएट करने की डिजायर, ठीक है, एंड हिज ऑब्लिगेशंस टू सेव द मदर, और उसकी बाध्यता थी क्या करना, माँ को बचाने की, उन दोनों के बीच में वो फंसा हुआ था। सो दिस वाज द डिलेमा इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर एंड्रयू। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर एंड्रयू, तो आपको यही दोनों लाइनें मेंशन करनी है, ठीक है। हु वाज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट मींस मिसेस सुजन मॉर्गन, इसको ऑब्लिगेशंस क्या थे कि वो सुजन मॉर्गन को बचाने का प्रयास करे। Who was herself in a desperate state, जो अभी भी कैसी अवस्था में थी, desperate state में थी। The dilemma was so urgent, the dilemma was so urgent, the confusion was so urgent, वो confusion इतना urgent था, यानी जो predicament जिसे कहते हैं, क्या कहें डिलेमा को, predicament, हिंदी में कहते हैं इसको दुविधा, वो इतना urgent था that he did not solve it consciously, कि वो उसे consciously यानी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच करके वो उसे सॉल्व नहीं कर सका था, ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली होता है नेचुरली। देखिए INSTINCTIVEL, यानी नेचुरली। डिलेमा इतना अर्जेंट था, प्रीडिकामेंट इतना अर्जेंट था दैट डॉक्टर एंड्रयू कुड नॉट सॉल्व इट नेचुरली, कि वो जो है नेचुरली उसको सॉल्व नहीं कर सका, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लो, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उसने क्या किया कि बच्चे को तो किसको दे दिया, नर्स को दे दिया। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजन मॉर्गन, और अपने ध्यान को किधर टर्न किया, सुजन मॉर्गन की ओर टर्न किया। Who now lay collapsed, जो बिल्कुल कैसी पड़ी हुई थी, कोलैप्स अवस्था में पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट पल्सलेस, यानी पल्स उसकी ऑलमोस्ट जा चुकी थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ ईथर, एंड नॉट येट आउट ऑफ डेंजर, ईथर या डेंजर, ठीक है, वो खतरे से बाहर नहीं थी। अपॉन हर साइड, अपनी साइड से, ठीक है। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, डॉक्टर एंड्रयू की जो जल्दबाजी थी वो डेस्परेट थी। अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर हैविंग स्ट्रेंथ मींस ही वॉज रनिंग अ फ्रेंटिक रेस, ये कह सकते हैं कि फ्रेंजीज, ठीक है, फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर हैविंग स्ट्रेंथ, अगेंस्ट द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ मिसेस सुजन मॉर्गन, यानी सुजन मॉर्गन की घटती हुई ताकत के अगेंस्ट में जो डॉक्टर एंड्रयू काम कर रहा था। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल, यानी एक सेकंड के अंदर डॉक्टर ने क्या किया, स्मैश कर दिया ग्लास एम्प्यूल को। एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और डॉक्टर ने क्या कर दिया, मेडिसिन को इंजेक्ट कर दी सुजन मॉर्गन की बॉडी में, ठीक है। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, फिर उसने क्या किया, सॉरी मैं थोड़ा डिफरेंटली बता गया आपको। देखिए ये कह रहा है कि इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट, यानी एक ही पल लगा था, एक मोमेंट लगा था उसको क्या करने में, ग्लास एम्प्यूल को ब्रेक करने में, स्मैश करने में। एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और उसमें मेडिसिन भरने में। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक, फिर उसने क्या की, हाइपोडर्मिक को फेंक दिया, डाल दिया।
एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली टू रिस्टोर हर फ्लैक्सिड वुमन, यानी टू रिस्टोर द फ्लैक्सिड वुमन, यानी उस लूज पड़ी हुई बॉडी को रिवाइव करने के लिए वो जो है जल्दी से रिस्टोर करने के लिए काम करने लग गया। तो कुल मिलाकर के बात आप ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर ने इंस्टेंटली क्या किया कि एम्प्यूल को ब्रेक किया, तोड़ा, और एम्प्यूल को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर एक ग्लास का जो इंजेक्शन आता है छोटा वाला जिसको हम सिरिंज में भरते हैं उसकी बात चल रही है, तो उसने फटाफट से उसको तोड़ दिया, ऐसे डॉक्टर ऐसे तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद तुरंत उसने इंजेक्शन भर के उसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया सुजैन मॉर्गन की बॉडी में, और फिर सिरिंज को फेंक दिया और फिर उसे अनस्पेयरिंगली उसकी बॉडी पर काम करने लग गया, यानी उसे ट्रीट करने लग गया। फ्लैक्सिड, फ्लैक्सिड का मतलब होता है लूज, यानी ढीली सी पड़ी हुई, शिथिल सी पड़ी हुई। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट्स, यानी कुछ मिनट के फीवरिश एफर्ट्स करने के बाद में हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, यानी सुजैन मॉर्गन का हार्ट कैसा हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, उसमें ताकत आ गई। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, अब उसने देखा कि वो उसको सेफली छोड़ सकता है और वो बच्चे को ट्रीट कर सकता है इस बीच में। देखिए कितना बड़ा भयंकर डिलेमा होगा जहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जिस बच्चे की उम्मीद थी और जिस बच्चे को जन्म दे रही थी वो माँ ही नहीं रही, तो फिर उस बच्चे की जन्म का क्या फ़ायदा, ठीक है। और अगर बच्चा मर गया तो सारी फैमिली की खुशियाँ तबाह हो जाएंगी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया था। एंड फाइनली ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस भी किया था, तो इसीलिए बहुत भयंकर प्रीडिकामेंट था डॉक्टर एंड्रयू के सामने। ही स्वंग राउंड, वो घूम गया अचानक से डॉक्टर इन हिज शर्ट स्लीव्स, अपनी शर्ट की स्लीव्स को किया, ठीक है, फोल्ड किया। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और उसके बाल जो है पसीने की वजह से क्या हो रहे थे, उसकी गीली आईब्रो से चिपक रहे थे। शर्ट की स्लीव्स को उसने क्या कर दिया था, अंदर कर लिया था, ऊपर की ओर फोल्ड कर लिया था। वेयर इज द चाइल्ड, डॉक्टर डिमांडेड, डॉक्टर ने मिडवाइफ से पूछा कि बच्चा कहाँ है। तो देखिए नर्स क्या कह रही है, द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, मिडवाइफ ने डरते हुए इंडिकेशन किया, डरते हुए जो इशारा किया। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, एक्चुअली शी हैड प्लेस्ड द चाइल्ड अंडर द बेड, उसने क्या कर रखा था, बच्चे को बेड के नीचे डाल दिया था। बिकॉज शी थॉट दैट द चाइल्ड इज लाइफलेस, ऑब्वियसली क्योंकि वह तो पैदा ही लाइफलेस हुआ था। तो देखिए इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ड डाउन, यानी इन अ मूवमेंट, इन अ फ्लैश का मतलब होता है इन अ मूवमेंट डॉक्टर एंड्रयू नेल्ड डाउन, नेल्ड डाउन का मतलब होता है बेंट डाउन, घुटनों के बल झुका। फिशिंग अमंगस्ट द सॉडन न्यूज़पेपर, सर्चिंग अमंगस्ट द डर्टी न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने बच्चे को क्या कर लिया, नीचे से खींच लिया। अब बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, यानी बॉडी परफेक्टली फॉर्म हो चुकी थी, लड़का था वो। द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट, यानी उसकी जो लाइफलेस वॉर्म बॉडी थी ना वो कैसी पड़ी हुई थी, वाइट पड़ी हुई थी। एंड सॉफ्ट एज टैलो, और इतनी सॉफ्ट थी मानो कि क्या हो, टैलो हो। टैलो होता है द हार्ड फैट ऑफ एनिमल मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप, जिसे मेल्ट किया जाता है और यूज किया जाता है क्या करने के लिए, सोप बनाने के लिए। तो ऐसी ही यानी टैलो की तरह उसकी बॉडी सॉफ्ट थी। द कोड हैस्टली स्लैश्ड, यानी उसने क्या किया, नाभि को जल्दी से काट दिया गया। कोड CORD, कोड का मतलब होता है नेवल, ठीक है। हैस्टली स्लैश्ड, यानी जल्दी से उसने उसे क्या कर दिया, स्लैश का मतलब काट दिया। ले लाएगा ब्रोकन स्टैम, और वो लटकी हुई थी किसकी तरह, ब्रोकन स्टैम की तरह। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, और उसके बच्चे की स्किन कैसी थी, लवली टेक्सचर, यानी बहुत सुंदर थी। स्मूथ एंड टेंडर, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी एंड बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, और उसका सिर जो है पतली सी गर्दन पर क्या हो रहा था, घूम रहा था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके लिम्स कैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि इनमें बोन है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में वो बिफोर टाइम पैदा हुआ था, इसीलिए उसके सारे के सारे पार्ट्स इस तरीके के थे। स्टिल नीलिंग, अभी भी डॉक्टर एंड्रयू क्या कर रहा है, नीलिंग कर रहा है, यानी झुका हुआ है। एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्रॉन, एंड्रयू स्टेयर्ड एंड लुक्ड एट द चाइल्ड विद अ वरीड फ्रॉन। हैगर्ड फ्रॉन का मतलब होता है चिंतित अवस्था से जो है डॉक्टर एंड्रयू बच्चे की ओर देख रहा था, क्योंकि सारा कुछ किया कराया खराब हो चुका था, सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। ओवरऑल ही हैड प्रोमिस्ड, ओवरऑल एंड मॉर्गन्स फैमिली
हैड इमेंस ट्रस्ट इन डॉक्टर एंड्रयू एंड फाइनली सब कुछ क्या हो गया था, तबाह हो चुका था। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्फेक्सिया पैलिडाई, यानी वाइटनेस का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है, एस्फेक्सिया पैलिडा है। ठीक है, एस्फेक्सिया पैलिडा होता है पेल और फीबल, यानी ये एक डिजीज है, क्या है, डिजीज है। नीचे देखिए रेफरेंस दे रखा है, सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशंस कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तब इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, यानी जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है ब्लड के अंदर, तो किसी को क्या हो जाता है, एस्फेक्सिया पैलिडा हो जाता है। अकम्पनीड बाई पेलनेस ऑफ द स्किन, जिसमें स्किन कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, वीक हो जाती है पल्स, ठीक है, एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सिस, और रिफ्लेक्सिस का क्या हो जाता है, लॉस होता है इसमें। एंड इन माइंड अननेचुरली टेंस, यानी अस्वाभाविक रूप से डॉक्टर एंड्रयू का माइंड कैसा हो गया था, टेंस्ड हो गया था, यानी तनाव आ गया था। रेस्ड बैक टू अ केस ही हैड सीन इन द समैरिटन, और तुरंत ही तेज दिमाग दौड़ता हुआ किधर चला गया, टू अ केस दैट ही हैड विटनेस्ड इन समैरिटन, यानी एक ऐसे केस को उसने विजुअलाइज किया था जो उसने कहाँ पर विटनेस किया था, समैरिटन में। ठीक है, समैरिटन इज द नेम ऑफ अ प्लेस। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, उस ट्रीटमेंट को उसने रिफ्लेक्ट किया, विजुअलाइज किया जो उसने यूज किया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन स्पीड, यानी तुरंत ही डॉक्टर एंड्रयू अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी अभी झुका हुआ था, और झुका हुआ था जैसे उसने बच्चे को देखा तो एकदम चिंतित हो गया। ठीक है, यानी सेवर ऑफ हॉरर पास हो गई थी कि क्या किया जाए, बहुत बुरा हाल हो चुका था। और अचानक से उसका तेजी से दौड़ता हुआ दिमाग कहाँ पर पहुँच गया, उस केस की ओर पहुँच गया जो केस उसने कहाँ पर विटनेस किया था, जो केस उसने समैरिटन में विटनेस किया था, और उसने वही ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई करने के लिए तुरंत तैयार हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स, यानी ही ऑर्डर द नर्स टू ब्रिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड बेसिन्स टू क्विक, और बेसिन्स भी लेके आओ, क्या लेके आना, बेसिन। आपने देखा वॉश बेसिन टाइप के बेसिन मंगाए डॉक्टर ने, और उन्होंने क्या किया, उसने कोल्ड वाटर और हॉट वाटर डालने के लिए बोला। बट डॉक्टर शी फ्लैटर्ड, शी फाल्टर्ड, बट डॉक्टर शी फाल्टर्ड, हु फाल्टर्ड, द नर्स फाल्टर्ड। ठीक है, द नर्स क्या करने लगी, वो फाल्टर्ड होने, यानी एकदम से हिचकिचाने लगी। हर आइज ऑन द पेलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी आंखें किसकी ओर थी, पेलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड की तरफ थी। क्विक ही शॉर्टेड, जल्दी करो जो मैंने बोला है। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, यानी उसने क्या किया, स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट खींचता हुआ, ही लेड द चाइल्ड बिटवीन द ब्लैंकेट, उसने क्या किया, बच्चे को ब्लैंकेट के ऊपर सुला दिया, एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और उसने रेस्पिरेशन के स्पेशल मेथड को उस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। यानी रेस्पिरेशन समझते ही होंगे, किसी के अंदर सांस डालना। ठीक है, द बेसिन्स अराइव्ड, बेसिन्स आ गई। द यूअर, ये वर्ड देख लीजिए, EWER, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूअर। ठीक है, इसको कहते हैं मग। ठीक है, ओपन माउथ मग होता है। द यूअर भी आ गया। द बिग आयरन कैटल, बड़ी आयरन कैटल, फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, यानी उसने जल्दी से क्या किया था कि एक बेसिन में तो जो है ठंडा पानी डाल दिया, इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरी बेसिन में उसने उतना गर्म पानी मिला दिया जितना कि उसके हाथों से क्या कर सकते थे, बियर कर सकते थे। ठीक है, यानी सहन कर सकते थे, झेल सकते थे। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, फिर एक क्रेजी जगलर की तरह, जगलर होता है मैजिशियन, कौन होता है, मैजिशियन, तो एक क्रेजी मैजिशियन की तरह ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी दोनों बेसिन्स के बीच में, यानी दोनों बेसिन्स में बच्चे को क्या करने लगा, डुबोने लगा। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आईसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, यानी once he plunged the child into the icy and then he plunged the child into the hot water, यानी स्टीमिंग बाथ, यानी कभी गर्म पानी में प्लंज करता बच्चे को तो कभी ठंडे पानी में प्लंज करता। इस तरीके से वो क्रेजी जगलर की तरह इस स्पेशल मेथड को अप्लाई करने लगा। अच्छा, 15 मिनट्स पास्ट, यानी ऐसा करते करते कितना टाइम निकल गया, 15 मिनट्स निकल गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज ब्लाइंडिंग हिम, यानी अब उसकी आंखों पर क्या आ रहा था, पसीना आ रहा था। एंड दैट वाज मेकिंग एंड्रयू ब्लाइंड, वो डॉक्टर एंड्रयू को क्या कर रहा था, ब्लाइंड सा कर रहा था। आपने भी देखा हो, व्हेन यू वर्क हार्ड एंड व्हेन स्वेट इज देयर अपॉन योर आईज इट सीम्स दैट वी कैन नॉट सी द थिंग्स क्लियरली, यानी चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो बिल्कुल वैसा ही इसके साथ में हो रहा था।
वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, एक स्लीव उसकी क्या हो गई थी, खुल चुकी थी। यानी कि आपने देखा, मैंने बताया था कि जब डिलीवरी की तो उसने क्या किया, उसने स्लीव्स को ऊपर कर लिया था, लेकिन अभी वो स्लीव क्या हो गई, नीचे हो गई है। ड्रिपिंग, और उसमें से क्या टपक रहा है, पानी टपक रहा है। हिज ब्रेथ केम पेशेंटली, और वो उसकी अब तो उसकी हाँफ नहीं चल रही, यानी वो हाँफ रहा है, तेजी से सांस ले रहा है। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे के शरीर में से कोई भी ब्रेथ नहीं आई। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, यानी डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, डॉक्टर एंड्रयू के ऊपर डिफीट का एक सेंस छा गया। A raging hopelessness, एक बढ़ती हुई निराशा छा गई। He felt the midwife watching him in a stark concentration, उसने महसूस किया कि मिडवाइफ जो उसे स्टार्क कंसंट्रेशन से देख रही है, यानी एक शॉक के साथ देख रही है। किसके साथ, शॉक एंड सरप्राइज के साथ देख रही है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी कॉन्स्टरनेशन है, क्या है, कॉन्स्टरनेशन, CONSTER, देखिए CONSTERNATION, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है शॉक एंड सरप्राइज। Let me see whether it is visible to you or not. Yeah, it's visible. यानी नर्स ने डॉक्टर की ओर कैसे देखा, शॉक और सरप्राइज के साथ देखा। While they are pressed back against the wall, जबकि सहारा लेकर के दीवार से बैठी हुई थी। Where she had all the time remained her hand pressed to her throat, उसके her hand pressed to her throat, यानी अपने हाथों से गले को पकड़े हुए थी। कौन थी, uttering no sound, कोई भी आवाज नहीं निकाल रही थी। her eyes burning upon him, उसकी आंखें जो है कंटिन्यूसली जो है एक अजीब से तरीके से डॉक्टर की ओर देख रही थी। वो द ओल्ड वुमन, ये थी ओल्ड वुमन। कौन थी ओल्ड वुमन, शी वॉज द मदर ऑफ मिसेस मॉर्गन, यानी सुजन मॉर्गन की कौन थी, ये माँ थी। देख लीजिए कितनी प्रे कर रही है, क्या हालात है इस लेडी की। ही रिमेम्बर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंडचाइल्ड, डॉक्टर एंड्रयू रिमेम्बर्ड द डिजायर, डॉक्टर एंड्रयू रिमेम्बर्ड हर डिजायर, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, फॉर अ ग्रैंडचाइल्ड, यानी एक ग्रैंडचाइल्ड के लिए जो उसकी डिजायर थी उसको डॉक्टर एंड्रयू ने रिमेम्बर किया, उसे वो चीज याद आई थी। व्हेन डॉक्टर एंड्रयू केम शी सेड दैट इट वुड हार्म इफ क्लोरोफॉर्म हार्म्स द बेबी, अगर क्लोरोफॉर्म से बेबी को कोई भी नुकसान होता है तो सुजन ने ये कहा है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं देना, वो लेबर पेन सह लेगी। और अभी हालात ये है कि द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन इट्स हेल्थ, उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं था। एंड शी वाज प्रेइंग अटरिंग नो साउंड, कोई साउंड नहीं कर रही थी, हाथों से गले को पकड़े हुई थी। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स, यानी शी हैड द डिजायर टू द child in the family and the desire was as great to the child as her daughters for the child, यानी जितनी तीव्र इच्छा उसकी बेटी की थी, यानी सुजन मॉर्गन की थी उस बच्चे के लिए, उतनी ही तीव्र इच्छा इस ओल्ड लेडी की भी इस बच्चे के लिए। ऑल डैश्ड अवे, यानी सब कुछ क्या हो गया, फ्यूटाइल, चकनाचूर हो गया। ठीक है, नाउ फ्यूटाइल यूजलेस बियॉन्ड रिमेडी, अब तो सब कुछ रिमेडी से परे था, यानी उपचार से परे था, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कोई भी ट्रीटमेंट। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस, यानी फ्लोर पर पूरी तरह से क्या हो रखा था, मैस हो रखा था, चीजें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवल, यानी एक साबुन की वजह से गंदी हुई टॉवल से टकराता हुआ डॉक्टर एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, यानी डॉक्टर एंड्रयू से बच्चा जो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, ड्रॉप होने ही वाला था। which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish, जो बिल्कुल कैसा हो रखा था, स्लिपरी हो रखा था। in his hands like a strange white fish, और वो ऐसा लग रहा था मानो कि व्हाइट फिश हो। for mercy sake, भगवान की खातिर, दया की खातिर, डॉक्टर whimpered the nurse, uttered the word
by the nurse and nurse uttered, nurse spoke, it's stillborn. ये तो stillborn child है। कैसा है? stillborn है। स्टिलबोर्न उसे कहते हैं जो कोई मूवमेंट नहीं करता, सांस वगैरह नहीं लेता। ठीक है। Andrew did not heed her. Andrew did not pay any attention to the midwife. Beaten, despairing, having labored in vain. Beaten, despairing यानी निराशा हार चुका है, निराशा छा चुकी है। Having labored in vain यानी व्यर्थ में मेहनत करने के बाद for half an hour 30 मिनट्स तक he still persisted in one last effort. He wanted to do one more effort. यानी एक लास्ट एफर्ट वो और करना चाहता था। वो क्या था देखिए, rubbing the child with a rough towel यानी एक रफ सी टॉवल से बच्चे को रब कर रहा है। ठीक है, यानी ऐसे हम आंखें रब करते हैं, रगड़ते हैं, ऐसे ही बच्चे को रफ टॉवल से रगड़ता हुआ। क्रशिंग एंड रेजिंग द लिटिल चेस्ट यानी उसकी छोटी सी चेस्ट को क्रश कर रहा। क्रश का मतलब था प्रेस करना, दबाना और फिर छोड़ना। विद हिज हैंड्स ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्प बॉडी, और वो उसके ढीले ढाले से शरीर में क्या डालना चाहता था? सांस डालना चाहता था ऐसा करके। यानी कि मैं आपको बताऊं कि रब सी टॉवल ली, उसने उसको रब किया, रब करने के बाद उसने उसकी चेस्ट को क्या किया? क्रश किया। क्रश करने के बाद फिर उसने उसे रिलीज किया, क्रश किया, रिलीज किया। इस तरीके से वो जो बच्चे के शरीर में क्या डालना चाहता था? सांस डालना चाहता था। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, फिर देखिए कहते हैं ना कि कई बार जो है दवा से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं और कई बार प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा काम कर जाती हैं। जो पढ़ी लिखी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन कई बार काम नहीं करती, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें काम कर जाती हैं, देसी नुस्खे काम कर जाते हैं। तो ये देसी नुस्खा ही तो था। द डॉक्टर एंड्रू अप्लाइड एट लास्ट, ये सोच करके कि कुछ नहीं हो सकता, बोले फाइनली एफर्ट करके देख लेते हैं। देन क्या हुआ? एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी चेस्ट विच इज हैंड्स एनक्लोज्ड, जो उसके हाथों में थी छोटी सी चेस्ट उस बच्चे की जो डॉक्टर एंड्रू के हाथों में थी, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, उसमें से क्या निकली? एक कन्वल्सिव हीव निकली। कन्वल्सिव हीव का मतलब होता है जर्की साई। क्या निकली? जर्की साई। मीनिंग जब SIGH। ठीक है। यानी झटकेदार एक सांस निकल के आई। अनदर, एक और आई। एंड अनदर, फिर एक और आई, यानी कि बच्चे के अंदर सांस निकलने लगी। ठीक है, बच्चे के अंदर से। एंड यू टर्न गिडी, फेल्ट डिजीइंग, एंड यू को क्या लगा? चक्कर आने लगा। गिडी का मतलब था डिजी। यानी एंटी को क्या आ गए? चक्कर आने लगे। ठीक है, क्यों आ गए चक्कर? चक्कर इसीलिए आ गए कि एक मिरेकल की तरह बच्चे के अंदर क्या आ गई? जान आ गई, बच्चे के अंदर सांस आ गई थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि लास्ट एफर्ट इतना फ्रूटफुल और यूजफुल हो जाएगा, और वो फ्रूटफुल और यूजफुल हो गया। तो एकदम से उसे चक्कर आ गए कि देखो कितना सही किया ईश्वर ने। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, यानी अब तो जो है जीवन का एक सेंस जो उसकी उंगलियों के नीचे फील हो रहा था। आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग वाज सो एक्सक्विजिट, यानी आफ्टर ऑल कुल मिलाकर के जो व्यर्थ में किया गया जो एफर्ट था वो इतना सर्वोत्तम ठहरा, यानी वो इतना यूजफुल निकला। एक्सक्विजिट का मतलब होता है अति उत्तम क्वालिटी का। ठीक है, यानी वंडरफुल। क्या कहेंगे यहाँ पर? यानी वंडरफुल सिद्ध हो गया। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, इसकी वजह से डॉक्टर एंड्रू क्या हो गया था? एकदम से मूर्छित सा ही हो गया था, क्योंकि एक तो खुशी हो गई कि देखो बच्चा बच गया। अब तो ही डबल हिज एफर्ट। और जब भी आपको किसी भी काम में सक्सेस मिलती है, खास करके ऐसे काम में सक्सेस मिलती है जो इम्पॉसिबल होता है, यू मेक योर एफर्ट्स डबल। इन द सेम वे डॉक्टर एंड्रू ऑल्सो डबल्ड हिज एफर्ट्स। ठीक है, फीवरिशली द चाइल्ड वाज गैस्पिंग नाउ, अब बच्चा क्या कर रहा था? हाँफ रहा था। ठीक है, गैस्पिंग का मतलब जल्दी जल्दी से सांस लेना। डीपर एंड डीपर A bubble of mucus came from a tiny nostril, उसके छोटे से नोस्ट्रल में से क्या निकली? बबल ऑफ म्यूकस निकला। बबल ऑफ म्यूकस वही होता है जो हम नोस्ट्रल में से निकालते हैं नोस्ट्रल को क्लीन करने के लिए। ठीक है, जुकाम हो जाता है तो हमारे नोस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते हैं म्यूकस से। ठीक है, तो उससे जो लिक्विड निकलता है उसे म्यूकस कहते हैं।
तो म्यूकस जो बच्चे के नॉस्ट्रल में से निकली। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, एक चीज छूट गई, सॉरी। अ जॉयफुल इरिडिसेंट, यानी एक खुशी की क्या थी, प्रदीप्ति थी, क्योंकि बच्चा सांस लेने लग गया और उसके अंदर से म्यूकस निकलने लग गए। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके जो लिम्स थे ना, नो लॉन्गर बोनलेस, अब वो बोनलेस नहीं थे, यानी अब जो है बच्चा लटका हुआ नहीं पड़ा था पहले की तरह। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब जो है जो उसका सिर पहले जैसे लटका हुआ था ना, अब लटका हुआ नहीं था। द ब्लेंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, जो व्हाइट स्किन थी ना, येलो स्किन, ब्लेंच्ड का मतलब है येलो स्किन, जो धीरे धीरे क्या हो गई, पिंक में कन्वर्ट हो गई थी। मैंने बताया था ना कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बॉडी क्या थी, येलो हो जाती है, तो उसको यहाँ पर ब्लेंच्ड यूज कर लिया, BLANCHED। वो धीरे धीरे कैसी हो गई, वो धीरे पिंक में कन्वर्ट हो गई। देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड क्राई, फिर वंडरफुली, एक्सक्विजिटली मींस वंडरफुली केम क्राई ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चा क्या करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। डियर फादर इन हेवन, डियर फादर इन हेवन, द नर्स शॉक्ड हिस्टेरिकली, नर्स को जो चक्कर आ गया और एकदम से सिसकियां लेते हुए चिल्लाई, ईश्वर इट्स कम अलाइव, अरे ये तो बच गया, ये बच गया। यानी नर्स भी जो है हिस्टेरिकली, जैसे चक्कर आ जाता है किसी को, इस तरीके से चिल्लाई, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे स्वर्ग के निवासी, ये बच्चा बच गया, देखो ये बच्चा बच गया, हे भगवान ये बच्चा बच गया, इट्स कम अलाइव। एंड हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रू ने बच्चे वाइफ को दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, एंड्रू जो है कैसा फील कर रहा था, कमजोर सा, थका हुआ सा फील कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, उसके चारों तरफ में क्या भरा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था। ब्लैंकेट, कंबल, टॉवल, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी गंदे गंदे इंस्ट्रूमेंट उसके पड़े हुए थे जिनसे वो काम कर रहा। द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाई इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम, यानी लिनोलियम के जो फ्लोर था, फ्लोर में बिछा हुआ था, उसके ऊपर पॉइंट के बल क्या पड़ी हुई, सिरिंज पड़ी हुई थी नीडल्स में। द यूअर, यूअर मैंने बताया ही था, अभी बताया था, फिर देख लो, यूअर होता है मग, ठीक है, यूअर भी पड़ा हुआ था। यानी द कैटल ऑन इट्स साइड, उसके बारे में क्या थी, कैटल थी इन द पडल ऑफ वाटर, यानी पानी के टैंक में। पडल ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का टैंक। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड, यानी अपने अस्त व्यस्त पड़े हुए बेड पर मदर अभी भी क्या कर रही थी, सपना देख रही थी। ड्रीम्ड अवे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, क्योंकि उसको उसने क्या दे रखी थी बाद में, एनेस्थेटिक दे रखी थी। एनेस्थेटिक इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन, यानी क्लोरोफॉर्म की तरह होती है, और वो उस बेहोशी की अवस्था में सपने देख रही थी अपने तरीके से। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, बुढ़ी महिला यानी सुजन मॉर्गन की मदर जो अभी भी जो दीवार का सहारा लेकर के खड़ी हुई है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ भी क्या हो रखे थे, साथ साथ जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और बिना आवाज के वो क्या कर रही थी, अपने होठों से प्रार्थना कर रही थी। सी वॉज प्रेइंग, प्रे कर रही थी। देखिए किस तरीके कंटिन्यूसली सी हैड बीन प्रेइंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो ओल्ड लेडी प्रे करती रही कि किसी भी तरीके से दोनों बच जाएं, और देखिए वो बच गए दोनों। मैकेनिकली एंड्रू रंग ओवर हिज स्लीव्स, उसने क्या किया, अपने स्लीव्स को निचोड़ा। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट डाली। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, नर्स मैं मेरा बैग बाद में ले जाऊंगा। क्यों, इसके दो रीजन हो सकते। ऑन द वन एंड डॉक्टर वॉज वीकेंड डेज, यानी he was tired because he did a lot of work, and on the other hand he might have thought that there may be some problem, so I would have to come again and then I would need it, so I will take it later, मैं इसको बाद में ले लूँगा। तो ये रीजन हो सकते हैं, ठीक है। He went downstairs, वो नीचे गया। Through the kitchen into the scullery, किचन से ऊपर के स्कलरी की तरफ गया। स्कलरी वो प्लेस होता है जहाँ पर क्या नाम है, बर्तन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। और वहां में पानी पिया, ठीक है। His lips were dry, सूखे हुए थे। At the scullery he took a long drink, बहुत ज्यादा पानी पिया क्योंकि प्यास लग रही थी। He reached for his hat and coat, उसने अपना हैट और कोट लिया। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense expectant face, यानी घर के बाहर उसने देखा कि जो नावरस तरीके से क्या कर रहा है, यानी जो मॉर्गन जो था वो बड़े ही तनाव में था घर के बाहर, और वो क्या कर रहा था, एक्सपेक्टेंट फेस, यानी उम्मीद वाला, एक उम्मीद वाला चेहरा लिए
खड़ा हुआ था बाहर और वो वॉक कर रहा था इधर से उधर। ऑल राइट जो थिकली बोथ ऑल राइट। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बोला, ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, यानी भारी सी आवाज में कहा दोनों ठीक हैं, बोथ ऑल राइट दोनों ठीक हैं। आपको लगता है कि ये 6 शब्द काफी थे, बट इसका भी एक रीजन है, क्योंकि देखिए ऑन द वन हैंड डॉक्टर एंड टेल द होल इंसिडेंट दैट ही डिड, ठीक है, थ्रू अ नाइट, एंड ऑन द अदर हैंड जो मॉर्गन वाज नॉट इन द कंडीशन टू सी एंड टू हियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम डॉक्टर। उसे बिल्कुल, अगर हो सकता है कि अगर वो इस तरह की सिचुएशन को सुनता तो उसके हालात और बिगड़ जाते, तो इसीलिए उसने उसको सिर्फ गुड न्यूज यही दी थी। इसको ही कहते हैं पॉजिटिविटी, कि दोनों ठीक हैं। डॉक्टर भी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता था उतने टाइम में और उस टाइम पर, एंड जो मॉर्गन भी आई थिंक उस अवस्था में नहीं था कि वो पूरी कहानी को सुनता और वो नॉर्मल रह सकता था। आई थिंक उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसीलिए यही 6 वर्ड्स लिए थे, ऑल राइट, बोथ ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट जो 3 तो ये हो गए, बोथ ऑल राइट और 3 ये हो गए, वर्ड्स केवल बोले। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब जो सुबह हो चुकी थी परफेक्टली, नियरली 5 o'clock, क्या टाइम हो गया था, 5 बज चुके थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, यानी मैंने को पहले ही बताया था कि जो मॉर्गन हिमसेल्फ वाज अ माइनर, वो अपने आप में क्या था, माइनर था। माइनर यहाँ पर वो वाला माइनर नहीं जो सोच रहे हैं अल्पसंख्यक वाला या वो वाला जो नाबालिग होता है वो वाला, यहाँ पर माइनर उसके लिए यूज किया गया वन हु वर्क्स इन अ माइन, जो कहाँ काम करता है, किसी खदान में काम करता है, ठीक है, खनन का जो काम करता है। द फर्स्ट ऑफ द नाइट, द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ द नाइट, नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, यानी नाइट की जो पहली शिफ्ट थी वो बाहर जा रही थी, यानी अपने काम पे वापस आ रही थी। एज एंड्रू वॉक्ड विद देम, जैसे एंड्रू उनके साथ में जा रहा था ना, स्पेंट एंड स्लो, यानी थका हुआ सा, स्लो जा रहा था। हिज फुटफॉल्स इकोइंग विद द अदर अंडर द मॉर्निंग स्काई, यानी दूसरे लोगों के साथ में उसके कदमों की भी आवाज आ रही थी मॉर्निंग स्काई में, मॉर्निंग स्काई के नीचे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो अंधा होकर के सोच रहा था। oblivious to all other works, oblivious to all other works, यानी unaware of what is happening around one, यानी जो कुछ उसके आसपास में हो रहा था उन सारी चीज़ों को भूल करके वो जो blindly thinking कर रहा था, सोच रहा था। he had done in blindly, यानी जो कुछ उसने blindly में किया था ना, उन सारे कामों को छोड़ करके अब सिर्फ इसी केस के बारे में सोच रहा था। I have done something, oh God, I have done something real at last, मैंने फाइनली समथिंग रियल कर दिया है, ईश्वर तेरी कृपा से मैंने कुछ अच्छा कर दिया। रियली ही डिड समथिंग रियल, यानी वाकई में उसने कुछ रियल कर दिया था फाइनली। इट वॉज जस्ट लाइक अ मिरेकल, मिरेकल की तरह था। डॉक्टर एंड्रू हिमसेल्फ थॉट इट इम्पॉसिबल बट ही मेड इट पॉसिबल। इसे ये कहते हैं कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लीड टूवर्ड सक्सेस। कहाँ की ओर ले जाती है, सफलता की ओर ले जाती है। अगर डॉक्टर हिम्मत हार जाता तो आई थिंक ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन सेविंग द चाइल्ड, बच्चे को बचाने में, बच्चे को रिसोसिएट करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो देखिए डॉक्टर के एफर्ट्स किस तरीके से, डॉक्टर के एफर्ट्स जो है सक्सेसफुल हुए थे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप you will enjoy the chapter. Thank you and bye bye. Have a nice day.